Now in this type we are having this one, two adjacent sides and three angles are given to you. Then how we are going to construct such type of parallelogram? So let's see, we can see the example exercise question number 11. So in question number 11 what is given to you? Construct a quadrilateral. So what I told you, सबसे पहले हमको क्या करना है? That is we have to draw one rough diagram. ठीक है, हमें क्या करना है? रफ डायग्राम देना है. रफ डायग्राम, नेम इट AB CD. फ्री हैंड डायग्राम होना चाहिए. There is no need to use scales and all that. Now what are the things are given to you? AB, that is 5.6, BC 4 centimeter, then angle A is 50 degree, angle B is 105, then angle D is 100, that is 80 degree. So now these are the things. Please explain the question 8 of 17A. चलिए ठीक है, इसके बाद हम वही एक्सप्लेन कर देंगे. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. Okay, Prachi. Now come to the topic. So now this is given to you. ये हमें दिया गया है. Now we have to start construction. So how we are going to start the construction? Let's see. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें एक चीज नोटिस करनी है. 5 point, suppose that we have started from here. So हमें 5.6 हम obviously यहीं से start करेंगे. First of all we will draw that. Okay. Then after drawing this AB, we are going to take an angle of 50 degree, and here we are going to take an angle of 105 degree. 105 डिग्री में हम 4 सेंटीमीटर का आर्क कट कर देंगे. यहाँ से हमें जो है C पॉइंट मिल जाएगा. बट हियर इट इज नॉट गिवन एनीथिंग. अब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है. वी हैव टू ड्रॉ 80 डिग्री एंगल फ्रॉम हियर. इट इज टोटली यूजलेस. 80 डिग्री हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है. क्लियर? सो नाउ व्हाट टू डू इज दैट we are going to find out angle C. So how we are going to find out angle C? So let's see, all the three angles are given to you, so we can easily find out the fourth angle now. So it is very easy. So that is the sum of all the four angles will be 360 degree. So we can now count that 80 plus 50, that is 130, 130 plus 105, so 135, 235. So 235. Now 360 minus 235. तो 360 में से अगर हमने 235 को माइनस किया, so how much we are going to get? So 60 plus 65, so 60 60 120, that is 125 है ना. So that angle will be 125. ये एंगल कितना जाएगा? 125. So we अब हमने इसको क्यों फाइंड आउट किया? बिकॉज हमें ये पता है कि हमें 125 डिग्री का एंगल कहाँ से ड्रॉ करना है. यहाँ पे 80 डिग्री ड्रॉ तो करना है, दैट वी डोंट नो. ठीक है ना. That's why we are going to find out angle C. इसलिए हमारे लिए क्या है? एंगल D दिया है बट वो किसी काम. So that's why we have to first find out the angle C. Is that clear? क्यों हम एंगल C को फाइंड आउट करेंगे वो आपको समझ में आया? ओके. नाउ अब हम मतलब जो आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे. सबसे पहले क्या करेंगे? सब लोग अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे AB. So everyone please do your copy. AB, that is 5.6 centimeter. Please construction अपनी कॉपी में साथ साथ किया करिए. Then only you are able to understand. Otherwise आपको कंस्ट्रक्शन सब कुछ समझ में आने वाला नहीं है. Clear? Saurabh, please don't do all these things. Okay. So now first what you have to do, सबसे पहले हमें क्या करना है? 5.6 centimeter ड्रॉ करना है. Then from A we have to draw an angle of 50 degree. चलिए 50 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर देते हैं. ये 50 डिग्री आप मेजर कर लीजिएगा. आपका 50 डिग्री होगा, मेरा भी 50 डिग्री है. ठीक है. सो यू हैव टू ड्रॉ विद योर दैट इज प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना है. प्रोटेक्टर इस्तेमाल करके सर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. लिंक दे दीजिए इनको सर. यस, लिंक इज अवेलेबल. है ना, लिंक आ जा रहा है. सुमित कुमार बैस, डोंट यस. ओके.
So now please now यहाँ पर आ जाइए. So now next what we have to do, we have to draw an angle of 105 degree. अब 105 degree तो obviously 90 degree से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो हमने कर दिया ये 105 degree. So you have to draw with the help of your protractor. आपको क्या करना है, अपना protractor से draw करना है. Is that clear? Okay. Now what we have to do? अब क्योंकि इसका मेजर तो हमारे पास था नहीं, बट हमको इसका मेजर है. सो नाउ फ्रॉम हियर यू हैव टू मेजर दैट इज ऑफ 4 सेंटीमीटर. चलिए मैं 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे कट लगा दिया. नाउ दिस पॉइंट इज सेट टू बी योर सी. अब हमारा ये पॉइंट क्या हो गया, सी पॉइंट हो गया. दिस डिस्टेंस विल बी योर 4 सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर? सबसे पहले क्या किया, ए बी ड्रॉ किया, एंगल ए ड्रॉ किया, एंगल बी ड्रॉ किया. इसके बाद हमने 4 सेंटीमीटर कट किया, सी पॉइंट मिल गया. नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ an angle of 125 degree from point C. अब point C से हम लोग क्या करेंगे, 100 इसका करेंगे और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके रखेंगे. 125 ड्रॉ करेंगे, ठीक है. तो 125 वो ऐसा होगा. क्लियर? सब ऐसे ड्रॉ करेंगे 125. मेजर कर लीजिए. देखिए सबका डायग्राम ऐसे ही बनेगा. सर ऐसे ही मेजर कर लीजिए. now these two lines intersect each other at a point, given point, and that point is said to be, that is आपको क्या आएगा, that is D. Is that clear? So now these are the basic requirements. इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन करना है. Sometimes it is not given to you that this angle, but we can calculate, because if 3 angles are known to us, so we can easily find out the next one. ओके बिल्कुल आयुषी, हम वेट ही कर रहे हैं. बिल्कुल हम वेट कर रहे हैं. ठीक है, अभी तुम सिर्फ ड्रॉ कर दिया. आपको क्या करना है, 5.6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करना है. इज दैट क्लियर सभी को? फिर 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. ए से यहां से 105 ड्रॉ करना है. कर दिया सभी ने? फिर यहां से ऐसे मेजर करके 4 सेंटीमीटर कट लगा देना है. सी पॉइंट मिल जाएगा. क्लियर? Then from C we have to draw an angle of 125 degree. They will intersect at D. You will get the pointing, and when you join this one, you will get your quadrilateral ABCD. Done? Are you see? सभी ने बनाया ना अपनी अपनी कॉपी में? Yes. ठीक है, जब तक आप बनाएंगे नहीं आपको आएगा नहीं. ना इट्स ओके. अब देखिएगा आपका डायग्राम भी कुछ ऐसे ही बना होगा जैसे हमने बनाया, बिना मेजरमेंट. देखिए सर का मेजरमेंट कितना अच्छा है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. सो दिस इज योर 4th टाइप. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ 5th टाइप. इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में आ जाते हैं. हाँ, बीच में भी क्वेश्चन किया था हमसे किसी ने. दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. डिस्कस कर लीजिए. चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं पहले. तो कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन व्हिच AB इज इक्वल्स टू 2.9. चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है. Now question number which we are going to take is 8. चलिए now 8 का पहले रफ डायग्राम देखते हैं. रफ डायग्राम में क्या दे रहा है? इट इज गिवन दैट AB is equals to 2.9. Okay, so AB is equals to 2.9. Mark here 2.9 centimeter. Okay, then it is given BC is equals to 3.2. So mark it here 3.2 centimeter. Is that no problem? Then it is given to you that is CD is equals to 2.7. So mark here 2.7 will be there. Okay, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है. Then DA is equals to 3.4 centimeter. DA is equals to 3.4. It means all the 4 sides are given to you. Okay. Then angle A is given to you 70 degree. तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया ये. सबसे इजी क्वेश्चन कैसे हो गया आप देखिए. किसका प्रॉब्लम था ये? ठीक है, DA diagonal कैसे हो सकता है? Harshit, how DA diagonal? DA never be a diagonal. Okay.
डायगोनल BD होता है और डायगोनल BD को दिया नहीं आई थिंक, यस BD इज नॉट गिवन टू यू, ओके। तो नाउ सी हियर, अब कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले 2.9 सर्कल ड्रॉ कर दिए, 2.9 AB, क्लियर। नाउ फ्रॉम A ड्रॉ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, चलिए 70 डिग्री बना देते हैं, ये 70 डिग्री है, बिल्कुल मेजर करिए 70 डिग्री निकलेगा, ठीक। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन टू यू, दैट इज 3.2। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 3.4 का कट लगा दें इसको, 3.4 का हमने से दिया, कट दे दिया, एंड दिस पॉइंट विल बी योर D, 3.4 सेंटीमीटर, ओके। नाउ फ्रॉम हियर वी हैव टू टेक एन आर्क, अब यहाँ से हमें आर्क लेना पड़ेगा ऑफ 3.2, अभी 3.4 है, 3.2 का एक आर्क हमने ले लिया, ऐसे आर्क लगा दिया। नाउ फ्रॉम हियर वी हैव टू टेक, अभी आर्क जो लगाया है थोड़ा सा इधर लगाना, क्लियर। नाउ वी हैव टू टेक एन आर्क फ्रॉम हियर 2.7, यहाँ से क्या करना है आपको 2.7 का आर्क ऐसे, ठीक है। नाउ यू आर गेटिंग दैट पॉइंट C, अब इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। सो दिस विल बी योर 2.7, ये तो हमने 70 बनाया था, एंड दिस विल बी योर 3.2, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो जिसका भी क्वेश्चन था आई होप वो अंडरस्टैंड कर गया होगा कि कैसे करना है, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ए बी हमेशा देखिए जो प्रॉब्लम होगा वो कहाँ पे, ABCD साइक्लिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बनाना है, अब ऐसे ABCD बट इट शुड बी इन साइकिल, ऐसा नहीं कि ABCD, डोंट डू लाइक दिस, ओके। ऐसा किया तब भी गड़बड़ हो जाएगा। ये ज्योमेट्री का एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमेशा साइकिल में होना चाहिए, ठीक, ये हमेशा याद रखें। नाउ सी द टाइप नंबर 5, आई होप सब पे ड्रॉ हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। Sir, you have experience to draw, that's why you're drawing same diagram. It's not experience, आप imagination है, not only here, फील्ड में भी हम मेजर कर लेते हैं, इमेजिनेशन। वी हैव टू इमेजिन कि 1 सेंटीमीटर इतना होता है एंड दिस विल बी इतना, तो कितना होगा हम कैलकुलेट कर लेंगे। इट्स नॉट IQ लेवल, यहाँ पे IQ लेवल में कोई टेस्टिंग नहीं है, ठीक है। ये जस्ट हाउ यू आर गोइंग टू इमेजिन, यानी अपने माइंड को आप कितना ज्यादा ब्रॉड ले जाकर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, दैट्स डिपेंड्स ऑन दिस वन। सो इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट एंड ज्योमेट्री नीड्स सम लॉट्स ऑफ इमेजिनेशन। ऐसा ही नहीं है, हम यहाँ ही नहीं, वो अपने घर में भी कोई भी चीज यूज करनी होती है तो हम एज्यूम कर लेते हैं। हमें अपनी बेटी का ड्रेस भी लेना होता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं, मेरी बेटी इतनी बड़ी है, हाँ इतना बड़ा, इट्स ओके, ये साइज सही, और एकदम एग्जैक्ट आता है, कभी गड़बड़ नहीं होता। ओके नाउ सो टाइप नंबर 5, what is given in type number 5, construct a quadrilateral when 4 sides and one of angle is given to you. Now this time all the 4 sides are given to you, so 4 sides and one angle, clear? अभी तक आपने क्या 4 sides 1 diagonal, 3 sides 2 diagonal, 3 sides 2 including angle, 2 adjacent sides and 3 angles. Now we are having a 4 sides and तो अभी अभी हमने एक ऐसे ही क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 8 इज जस्ट लाइक दैट ओनली, यस, ठीक है। तो आई होप, चलिए चलते हैं अब, इसी तरह के क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 तो हमने कर ही लिया है टाइप नंबर 5 पे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नाउ। Yes, don't send emojis and all that, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करिए अपना। सो नाउ लेट्स सी स्टार्ट, हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को ही ले लेते हैं।
तो वी स्टार्ट। तो ये अभी अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 जो किया हुआ है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस वन। ऑल द फोर साइड्स आर गिवन टू यू and one of the angle is given to you, so it is very easy for you to construct a quadrilateral when four sides and one of the angle is given to you. Okay, so let's start with question number 13. हम क्वेश्चन नंबर 13 से बैक हो रहे हैं, ठीक है। अब टाइप्स आपके खत्म हो चुके हैं, टाइप्स हम डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। So question number 13, construct a quadrilateral ABCD in which AB is equals to 4 cm. तो again हमेशा मैंने आपको कहा है रफ डायग्राम इसी, हाँ जो बोल रहे थे इमेजिनेशन डिपेंड्स ऑन द रफ डायग्राम। आप लोग क्या ना रफ डायग्राम कभी नहीं ड्रॉ करते ना किसी भी क्वेश्चन का, हम तो लीनियर इक्वेशन का भी रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ABCD in which AB is equals to 4 cm, AC is equals to 5 cm, AD is equals to 5.5, then angle ABC and ACD, ABC is equals to ACD, दैट क्लियर। अब देखिए ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया है, कैसे स्टार्ट करेंगे। लीनियर इक्वेशन का कैसे ड्रॉ होता है, आप सपोज दैट किसी आप लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, बहुत छोटी क्लास है क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्लास 7 में दिया जाता है कि we are having a one rope of length this one and it is divided into 9 equal parts, then what will be the length of the each equal part, ऐसा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। आप लोग क्या करते हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। सर ऐसा नहीं करते, सर क्या करते हैं, ये रोप है सर, इतनी बड़ी रोप है सर की, ठीक है ना, उसका टोटल लेंथ दिया हुआ है 2.67 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने इसकी 9 इक्वल पार्ट्स की, ऐसे करके मैं 9 इक्वल पार्ट्स को ड्रॉ कर देता हूं। ईच पार्ट विल बी x, तो टोटल लेंथ कितना होना चाहिए 9 into x एंड दैट विल बी इक्वल टू 2.67। तो सर को अच्छा समझ में आएगा कि तुमको समझ में आएगा, सर को अच्छा समझ में आएगा तुमको समझ में आएगा, अंडरस्टैंड। देखो इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन करेक्ट है, वहां सी ऑप्शन पे ही करेक्ट ऑप्शन टिक है, सो डोंट वरी अबाउट दिस, जो सी पे सी टिक करेगा वही आंसर सही है। अब बी सी करने अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर लीनियर इक्वेशन एंड ऑल। मैं तो हर चीज के लिए डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, हिंदी इंग्लिश कहीं पर भी ड्रॉ कर लो। चलिए अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे सब लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले सब लोग ड्रॉ करेंगे ए बी ऑफ 4 सेंटीमीटर। ओके, ड्रॉ ए बी 4 सेंटीमीटर, ऑल ऑफ यू प्लीज ड्रॉ। फिर सब लोग ड्रॉ करिए ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यस आई सी। Now what we have to do, from B we have to draw angle 90 degree। अब प्रोटेक्टर से ड्रॉ कर लीजिए, है ना, या आप कंपास से ड्रॉ करना चाहते हैं, कंपास से ड्रॉ 90 डिग्री। क्लियर। Now from here we have to take an arc of 5 सेंटीमीटर। अब यहां से फ्रॉम ए से आप क्या करिए 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करिए, 5 सेंटीमीटर का एक ऐसा आर्क लगा दीजिए। 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, इसको ज्वाइन करिए, दिस विल बी योर पॉइंट सी। क्या होगा आपका पॉइंट, then this will be your 5 centimeter। Now from here we have to again draw a 90 degree angle। अब यहाँ से फिर से क्या करना 90 डिग्री, प्रोटेक्टर यूज करिए 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री बना, नहीं 90 डिग्री नहीं बना, देखने से लगता है 90 डिग्री नहीं बना, ये 90 डिग्री, ऐसा 90 डिग्री आंसर। क्लियर। अब 90 डिग्री आपने ड्रॉ कर दिया। नाउ अगेन फ्रॉम ए we have to take an arc of 5.5
5 का आर्क कट करना है आपको, क्लियर। सो व्हेन यू टेक एन 5.5 भी 5 है, 5.5 है तो बहुत ही देखिए तुम करीब में आके ऐसे कट करेगा, बहुत ही पास में आके कट करेगा ये 5.5, ठीक है। दैट पॉइंट विल बी योर डी। नाउ दिस पॉइंट हियर, आपको ये 5.5 का आर्क भी कहां से लगाना है, ए से लगाना है। ये 5 का आर्क भी हमने यहीं से लगाया था, 5.5 का भी यहीं से लगाएंगे, ठीक है। एंड व्हेन यू ज्वाइन दिस वन, आप क्या करिए, the diagram looks like that. This will be your 5 point, I think. Which one is wrong, my dear? Nothing will be wrong. So when the result will become? Result आ गया होगा, नहीं आएगा तो आज आ जाएगा. Don't worry about that. Sir, in exercise 2C, question number 5. Parna. Wait, exercise 2C, question number 5. So what happened in this? Yes, अभी आपने बताया था. Wait, let me see. Both in old and new book, we are having this one, and 60/7 is the correct answer. अभी हम चेक कर लेंगे ना उसको, चेक कर लेंगे मोबाइल पे, चेक कर लेंगे कहाँ पे था. Okay, don't fight. So now this one is complete. Diagram सबका ऐसे ही बना हुआ है. Is that question number 13? चलिए देखते हैं. Now see the question number 12.
क्वेश्चन नंबर 13 सबको समझ में आया कैसे किया है कंस्ट्रक्शन? हो डोंट फाइट यार, व्हाई यू आर फाइटिंग ऑल? ठीक है ना, वो चेकआउट करेंगे क्योंकि इमेज कट करके दी गई है, यानी इस फोटो को खींच कर फोटो वहां पे कट दी है। सो अगर बुक में वही क्वेश्चन है तो ऐसे कैसे चेंज हो सकता है? आपने अब फोटो में से -1 तो गैप नहीं होगा। हाँ, अब वो प्रिंट वहां पे आ नहीं रहा होगा तो वो ऐप का प्रॉब्लम होगा वहां का। ठीक है, तो वो उसको देखा जा सकता है कि लेट्स सी व्हाट विल बी देयर। ठीक है, सो डोंट फाइट फॉर दैट, इतने के लिए फाइट करने की जरूरत नहीं है ना, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन नेक्स्ट वन ना। चलिए नेक्स्ट वाला हम सारा टाइप करके बनाएंगे ना अच्छे से, एक भी गलती नहीं हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कंस्ट्रक्ट अ कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस इन विच पी क्यू, अब देखिए आप यहाँ पे नया कोऑर्डिनेटर है पी क्यू आर एस। ओके, so now what is given in PQRS? PQ is equals to 5 centimeter. QR is equals to 6.5. Angle P is equals to angle R. Angle P is equals to angle R, 100 degree. And angle S is equals to 75. ठीक है, अब देखिए टोटल कितना होंगे 275. So 275, so 25 plus 65, that is this angle will be your 85. हो सकता है कि जरूरत पड़ेगी, इसे जरूरत पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं है, इसलिए हमारे लिए एंगल यूजलेस है। We are having measurements here, so we need this angle. Clear? That's why we are going to calculate angle Q. Clear? Understand? अब हम क्या करते हैं, काम we are going to start construction. Construction start करते हैं, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे PQ. So all of you please draw PQ. 5 centimeter. सब लोग ड्रॉ करिए PQ. Then एंगल Q ड्रॉ करेंगे 85 डिग्री ना, 90 से थोड़ा सा कम, 90 से थोड़ा सा कम 85, इससे ये थोड़ा सा 80 हो गया है शायद, बस 80 हो गया, चलेगा, आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे ना, इट इज 85। नाउ 100 डिग्री होना चाहिए, 100 थोड़ा सा 90 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 100 हो गया, तो दिस एंगल विल बी व्हाट, इज दैट? लिंक को बार बार भेजने की जरूरत नहीं है, व्हेन समवन आस्क और समवन ज्वाइन देन ओनली वी कैन गिव ना, सो डोंट डू ऑल दिस थिंग्स ना। अब यहां से क्या करना है, 6.5 का कट लगाना है, ठीक है, 6.5 कट कर दिया, मार्क दिस पॉइंट आर। ओके, नाउ फ्रॉम हियर वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 100 डिग्री, तो 100 डिग्री ड्रॉ करना है, थोड़ा सा टिल्टेड जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री किस ऐसा जाएगा, ये इंटरसेक्ट समवेयर है, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये एंगल हमने कितना बनाया 100 डिग्री। नाउ दिस विल बी योर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। Is that clear? Now the next one. Question number 11 we have already discussed. So I'm going to discuss question number 10. 9 डिस्कस कर चुके हैं, 10 को डिस्कस करेंगे, 8 डिस्कस हो चुका है, इस 7 को करेंगे, उधर ऐसे करेंगे, ठीक है, या आप लोग कर सकते हैं, या आप लोग कर सकते हैं, आर यू एबल टू डू ऑल दिस क्वेश्चंस?
इसमें से कुछ क्वेश्चन अभी अभी और कराने हैं. Yes, what I want that कि first you will try by your own. Okay, बिकॉज हमने लगभग लगभग सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, सो यू शुड ट्राई बाय योर ओन, है ना. हम लोगों ने अभी इसमें से 1 2 3 है ना 4 5 6 7 क्वेश्चन तो कर ही लिए हैं आउट ऑफ 13. ठीक है, सो लेट डिस्कस नेक्स्ट वन. 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को कर देते हैं ना. 6 क्वेश्चन वी हैव डन. नहीं राहुल ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि 5 तो टाइप्स किए हैं, 5 टाइप्स का 2 एक्स्ट्रा किए हैं, तो 5 to 7 क्वेश्चन विल बी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स. अब सपोज करिए कि अगर हमारे पास स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स है, ठीक है. अब स्पेशल कोऑर्डिनेटर में कुछ नया नहीं होने वाला है. द डिफरेंस इज व्हाट नाउ वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज. अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में भी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना. हाउ, लेट्स सी. So let's see. 6 questions are left. Okay. So construction of special parallel, special coordinates, है ना. So special coordinators means we are going to talk about now the parallelogram. We talk about the rectangle, rhombus, square, sometimes trapezium also. Maybe kite. हम यही ड्रॉ करेंगे, स्पेशल तो यही ड्रॉ करने. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD in which AB is equals to 6 cm, BC is equals to 4.5 and diagonal is given to you. वेरी इजी. ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं ना, एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज से स्टार्ट कर देते हैं. सो लेट्स टेक अ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 17B. सबसे पहले हम लोग पैरेललोग्राम को लेके चल रहे हैं. वी विल डिस्कस हाउ पैरेललोग्राम इज गोइंग टू बी ड्रॉन. तो इनको भी साइड कर. कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं पैरेललोग्राम का. रफ पैरेललोग्राम क्या लग रहा है, सुंदर सा प्यारा सा. AB is equals to 5.2, BC is equals to 4.7, AC is equals to 7.6. अब आपने देखा हुआ टाइप 1 क्या था, ऑल द 4 साइड्स एंड वन ऑफ द डायगोनल इज गिवन टू यू. नाउ यू कैन सी 5.2 है, ये भी 5.2 का, ये 4.7 है, ये 4.7. इट मींस ऑल द 4 साइड्स एंड वन डायगोनल इज गिवन टू यू. तो हो गया फर्स्ट टाइप, टाइप नंबर 1. ड्रॉ कर सकते हैं. कैसे ड्रॉ करना है, लेट्स सी. सबसे पहले AB 5.2 centimeter. All of you draw this one. Clear? Then from B, take an arc of 4.7. 4.7 का arc लगाइए, and from here take an arc of 7.6. You are getting this point C. Join. Clear? Now again from here, take an arc of 4.7. यहाँ से क्योंकि लेंथ भी 4.7 होगा, ये 4.7, ये भी कितना होगा 4.7, दिस विल बी 5.2. Now from here draw an arc of 5.2. ड्रॉ कर दीजिए. You'll get point D.
थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो गया ना। ठीक है, आप लोग आग सही से लगाइएगा, आ जाएगा। ये फर्जी आर्क है, फ्रॉड आर्क। कभी कभी बच्चे सोचते हैं ना, सर हम तो मेजरमेंट करके बना देंगे, आप कैसे पकड़ पाएंगे, हम तो आर्क लगा देंगे। ए से जब हम 4.7 का आर्क लगाएंगे तो आर्क ऐसे लगेगा, ऐसे, ना कि ऐसे। सर यहां से भी पकड़ लेगा, अंडरस्टैंड। सर का इस चीज में दिमाग बहुत तेज चलता है। ये आर्क ऐसे बनना चाहिए, 4.7 का कट ऐसे लगेगा। बच्चे ही भूल जाते हैं, ठीक है ना। 5.2 का आर्क जो है ना वो ऐसे लगेगा, ऐसे 5.2 लेंगे वो ऐसे करके आर्क, इस तरह। अंडरस्टैंड। सर आर्क देख कर आपका बता देंगे कि आपने गलत फर्जी आर्क लगाया है या सही वाला आर्क लगाया है। अंडरस्टैंड। ये चीज ध्यान रखिएगा कि सर के साथ कभी फर्जिफिकेशन मत करिएगा कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, we can see ABCD in which AB is equals to 4.3, AD is given to you, that is 4 centimeter, and BD 6.8. सेम क्वेश्चन है, you can draw by yourself, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, अपने आप ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अलग है। फर्जिफिकेशन का मीन्स होता है हर्षित कि आपने क्या किया, पहले ही स्केल से नाप के पैरेललोग्राम अच्छा बना लिया, सिर्फ इधर से भी 4.7, इधर से भी कहीं से मेजर करेंगे सर को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। बढ़िया बना के उसके बाद फिर क्या कर दिया, ऐसे हाथ से लगा दिया। सर मैंने बनाया था अपने, मैंने सर कंपास से मेजर किया था, कंपास से मेजर किया था, बस सर को पता है कि आर्क किधर लगेगा। नाउ कंस्ट्रक्ट थर्ड वन, पैरेललोग्राम PQRS। चलिए PQRS ड्रॉ करते हैं, तो इसका नेम चेंज कर देते हैं PQ। So when you name it PQRS, now what is given to you? QR is 6 centimeter. QR is 6 centimeter. PQ is 4 centimeter. Okay, 4 centimeter. And angle PQR, angle PQR is equal to nothing to worry. और भी इजी हो गया, और भी इजी हो गया। कैसे इजी हो गया? 4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, PQ, Q से 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। अब इसे 60 डिग्री है तो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का कट लगाया, दिस विल बी योर R, ओके। अब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। So now from here take an arc of 4 सेंटीमीटर। आप यहां से क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर एक आर्क लेंगे, ठीक है। अब यहां से आर्क लगाएंगे तो कैसे लगेगा, ऐसे, ठीक है ना। आपने एक आर्क लगाया 4 सेंटीमीटर, यहां से कितना आर्क लगाना है, दैट इज ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब यहां से मेजर किया और आपने क्या किया, 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, तो ऑब्वियसली 6 सेंटीमीटर का आर्क कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे इधर से। अब क्या कर दिया, यहां से आपने आर्क लगा दिया लाइक दिस, ओके। हो गया सर ड्रॉ, पैरेललोग्राम विद दिस वन। देखिए आप लोगों का डायग्राम भी ऐसे ही बनेगा,
Same you are having. दैट इज ऑब्वियसली अब आपको चेक करना है कि आपका सही बना है कि नहीं, तो आप क्या चेक करिए 60 डिग्री आ गया मतलब आपका सही. If this angle is 60 degree, it means you are correct. Okay. Yes, time is over now. So हम भी stop कर रहे हैं. So question number 4 you can do by yourself. So from tomorrow tomorrow तो है नहीं हमारी classes. Monday we will start from question number 5. Okay. So thank you very much to all of you to join me. Videos will be available